Good morning, everyone. Now I'm going to start this last video for fixed income securities, basically covering the IBBI RVO exams or any other competitive exams covering the finance or valuation topics. The topic for the day is related FIMMDA, that is basically as per the FIMMDA circulars, and this topic is again covered under the head of fixed income securities for IBBI RVO exams, adjusted value exams. So right now I'm going to discuss the questions one by one. If you have will left with any of the queries in any of the questions, then you can contact me on this number that I have given to you in the earlier videos. I will also discuss it with you in this particular video at the end of the video. So right now I'm going to start the questions. The question number is 204. The first question is, the first in fixed income security, fixed income money market and derivative association of India, that is basically FIMMDA, is an association of national and private sector banks, financial institutions and insurance companies. The correct answer is all of the above. So before going further, let me show you the exact website and exact circulars, how these circulars looks like. So have a look. This is basically the website of Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India, FIMMDA. These are the circulars. The recent circular is valuation of investments as on 31st of March. If I open this, then these type of circulars are issued for 2020. This is the circular. Under this circular, it is written that like treasury bills, how we are going to value the treasury bills. For example, standard or primary dealers, floating rate bonds, which it will be. So these are the theoretical parts that must be remembered. So for example, for treasury bills, it is written as the treasury will be valued at carrying cost. The different type of securities, how you are going to value that, the type of instructions or recommendations are given under these circulars. So now we are moving further, and the question number 205 is, the main object of FIMMDA is to further the interest and regulate the dealing in fixed income money market instruments and derivatives, then to recommend and implement healthy business practices, ethical code of conduct and standard principles and practice to be followed by members, to facilitate introduction of new products and practices. This is not the purpose of this, this is also a purpose of to facilitate introduction of new products in and practices in derivatives markets only, not other markets. So the correct answer for this is all of the above. इनका यही काम होता है कि इंटरेस्ट फिक्स इनकम सिक्योरिटीज को रेगुलेट करना, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना और हेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस को मैनेज करना और बनाना. The third next question is, the valuation of investment circular issued by the FIMMDA publishes. अभी भी हम लोगों ने देखा ये क्या बताता है, the prices या rates for valuation of government securities, bonds and debentures and swaps, issues guidelines clarifications at periodic intervals in respect of methodology to be फॉलोड फॉर वैल्यूएशन. जैसे हम लोगों ने देखा कि अलग अलग टाइम पे 2019 के लिए अलग सर्कुलर आया था, 18 के लिए अलग था, बीच में भी कभी कभी अगर इनको अपडेट करनी हो कोई चीज तो सर्कुलर्स आते रहते हैं. तो दोनों कामों के लिए, एक तो इन चीजों की वैल्यू कैसे कैसे की जाएगी, दूसरी इन इंस्ट्रूमेंट्स की सारी वैल्यू कैसे कैसे की जाएगी, एंड देन इज कि इनके लिए जब हम लोगों ने वैल्यू करनी है तो टाइम के बाद डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिनेरियो हम लोग उस वैल्यूज के हिसाब से नए नए टाइमली सर्कुलर्स भी इशू करते रहना है. देन नेक्स्ट, as per the valuation of investment circular issued by FIMMDA, treasury bill is valued at, coincidentally we have seen this particular part, और उसमें भी हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि कैरिंग कॉस्ट. बट ये है कि हाँ, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ये जो सर्कुलर में लिखी हुई चीजें हैं. as per the valuation of investment circular issued by this, all central government securities which qualify for SLR as well as which do not qualify for SLR, statutory liquidity ratio for banks basically, to be valued as per the prices issued by the FIMMDA. कई बार हमें बाई डिफॉल्ट लगता है कि SLR वर्ड आ गया तो ये तो फिर RBI का काम होगा, बट दिस इज नॉट ट्रू. ये भी कैसे वैल्यू होगा, चाहे SLR उसके ऊपर अप्लाई होते हैं चाहे नहीं होते हैं, वो विल बी वैल्यूड बाई FIMMDA के तरीकों से ही वैल्यू होंगे. As per the valuation of investment circular issued by FIMMDA,
commercial papers, certificate of deposits of tenure less than 1 year are valued at less than 1 year. Basically मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेजरी बिल भी आपके, कमर्शियल पेपर्स भी आपके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी, तीनों के लिए वो क्या बोलता है, कैरिंग कॉस्ट. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, these all are basically money market instruments and should be valued at carrying cost. As per the valuation of investment circular issued by FIMMDA, security receipts will be valued at, पहला ऑप्शन है कैरिंग कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है मैच्योरिटी कॉस्ट, तीसरा है नेट प्रेजेंट वैल्यू गिवन बाय द इशूइंग रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. द आंसर इज सी. जो भी आज के दिन पे इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से फ्यूचर में बेनिफिट हो सकते हैं, रियलाइजेशन हो सकती है, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब क्या होता है, जो इससे बेनिफिट ड्राइव कर सकती है, ठीक है, तो उन सब बेनिफिट्स की आज की प्रेजेंट वैल्यू के बराबरी की ही इनको वैल्यू करने के लिए हम लोगों को बोला गया है एज पर दिस सर्कुलर. The clean price of the bond already discussed, any interest that is accrued. जब भी हम लोग clean price और dirty price की बात करते हैं तो dirty price में से अगर हम लोग accrued interest reduce करते हैं that is called clean price, है ना. तो यहाँ पे बोला हुआ है the clean price of the bond is excluding any interest accrued on them. The dirty price of the bond is including, dirty price में already accrued interest include होता है. Which of the following statement is correct one? Clean price is equal to dirty price minus accrued interest. Also true, recently discussed. और पहले भी ये हो चुका है किसी न किसी वीडियो में. Security issued by company are traded in secondary market. जब भी सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इशू करना हो, तो आईपीओ निकालना हो, तो उस टाइम पे वो प्राइमरी मार्केट में ट्रेड होता है. उसके बाद जब ट्रेड होना है, वो फर्स्ट टाइम इशू इज इन प्राइमरी मार्केट, देन ट्रेडिंग इज ऑलवेज डन इन सेकेंडरी मार्केट. दैट are also known as floating rate note, are a type of bond characterized by floating rate of interest. जीरो कूपन बॉन्ड पे कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है, फिक्स और फ्लोटिंग नहीं. ये इसी का दूसरा नाम है डीप डिस्काउंट बॉन्ड. तो बेसिकली म्यूनिसिपल बॉन्ड के ऊपर भी फ्लोटिंग रेट नहीं होता. जनरली फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग रेट नोट, आर अ टाइप ऑफ बॉन्ड कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट. इनका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसी के नाम से उसको फ्लोटिंग रेट बॉन्ड हम लोग बोल देते हैं. देन of interest means a rate of interest that is derived using a benchmark or a reference rate which could be any external rate of interest. जो किसी और रेट के ऊपर बेस्ड हो, लाइबर के ऊपर, MIBOR के ऊपर, उनके बेस पे अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट निकले तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्लोटिंग रेट. एग्जांपल्स ऑफ फ्लोटिंग रेट आर ALIBOR, यूरिबोर, यूरोपियन बैंक्स ऑफर रेट. अब इस क्वेश्चन में द करेक्ट आंसर शुड बी सी. ए इज नॉट अ करेक्ट आंसर, एज ये भी आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी आपका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है. बॉन्ड्स विद इशूअर्स that have not received a credit rating from one or more major credit rating agencies are called non rated bonds. ठीक है, एम्बेडेड बॉन्ड्स वो होते हैं जिनमें साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस हो. रेटेड बॉन्ड्स वो है जिनके ऊपर रेटिंग मिली हुई है. डीप डिस्काउंट बॉन्ड जिनके ऊपर रेटिंग तो मिली होती है पर जिनके ऊपर इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होता. बॉन्ड्स इशूड बाय कॉर्पोरेशन एंड एक्सपोज टू डिफॉल्ट रिस्क, जिनके ऊपर डिफॉल्ट रिस्क है और कॉर्पोरेशन इशू करती हैं, उनके नाम से उनको जानते हैं हम लोग. इशूड बाय कॉर्पोरेशन आर कॉल्ड कॉर्पोरेशन बॉन्ड. is difficult to buy and sell due to the fact that they do not trade on a normal major secondary market. अगर वो किसी secondary market exchange के ऊपर ट्रेड नहीं हो रही, तो उन्हीं सिक्योरिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो मार्केट नहीं हो सकती है ना. लिस्टेड कंपनी नहीं बोलते, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते, मार्केटेबल नहीं बोल सकते, नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज. Example of non-marketable securities: listed shares are marketable, risk-free bonds are marketable, zero coupon bonds are generally marketable, पर प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते, है ना. इसलिए इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज. देन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, किसी कंपनी का शेयर है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी कंसिडर्ड एज ईदर द फेस वैल्यू. अगर आपको कोई और वैल्यू नहीं मिल रही तो FIMMDA का सर्कुलर बोलता है कि जो सिक्योरिटी मार्केट में कोटेड नहीं है उसको आज के दिन पे आप उसकी इंट्रिंसिक या थ्योरेटिकल वैल्यू क्या मान लो, जो उसकी फेस वैल्यू है. या तो फेस वैल्यू मान लो या उसके ऊपर क्या मान लो कि जो मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल मिलना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो उसको इंटरेस्ट जोड़ के जो टोटल पैसा मिल रहा है उसी को आप आज के दिन पे इंट्रिंसिक वैल्यू मान सकते हो, है ना.
face value or intrinsic value. Bonds that are considered investment rating bonds are given below. ये तो ऑलरेडी इन डिफॉल्ट होता है, ये भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं गिने जाते. द BBB rating is a investment rating bond. Bonds with a different maturity date in an investor portfolio, जिनकी अलग अलग maturity date है, वो staggered, long duration में एक लंबी ड्यूरेशन है, फिक्स ड्यूरेशन में एक फिक्स ड्यूरेशन है, शॉर्ट ड्यूरेशन में एक शॉर्ट ड्यूरेशन है, बट फिक्स्ड है ना. इन बाकी के दिनों में फिक्स्ड है. जो मल्टीपल अलग अलग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपके पास है, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं स्टैगर्ड मैच्योरिटी बॉन्ड्स. Then 225, bonds that can be paid off early by the issuer's discretion, जिसने इशू करा उसकी डिस्क्रिप्शन. दैट मींस वो अपने बॉन्ड्स को कभी भी कॉल कर सकता है. जब ये डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके इन्वेस्टर की होती है, दैट इज कॉल्ड पुटेबल बॉन्ड्स, है ना. सो एज बीइंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कॉलेबल बॉन्ड्स. Holding a portfolio bonds which includes some short term, some medium term and some long term to reduce interest rates would consist of staggered maturity bond. अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जिसके ऊपर अलग अलग मैच्योरिटी ड्यूरेशंस के बॉन्ड्स इस पोर्टफोलियो में है, दैट इज कॉल्ड स्टैगर्ड मैच्योरिटी बॉन्ड. ये अपने आप में अलग अलग है ना, जो कि एक स्मॉलर पार्ट है, जो उसी को ब्रॉडर टर्म में अगर बोलना हो, दैट इज कॉल्ड स्टैगर्ड मैच्योरिटी बॉन्ड्स. ए is a debt with no maturity debt, such bond is also referred as console. जब किसी डेट के ऊपर कोई मैच्योरिटी डेट ही नहीं है आपके पास, तो उन्हीं बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, परपीचुअल बॉन्ड्स, इनफाइनाइट बॉन्ड्स या परपीचुअल बॉन्ड्स. इनके ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, हम लोगों को कोई फिक्स टाइम पीरियड हमारे पास अवेलेबल नहीं है. परपीचुअल बॉन्ड्स आर वैल्यूड यूजिंग द फॉर्मूला, जो भी इसके ऊपर लास्ट में जो भी इसके ऊपर बदले में हमें इंटरेस्ट पेमेंट या कूपन पेमेंट मिलेगी, डिवाइड बाय द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, दैट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और YTM फॉर द एज फार एज मैक्सिमम टाइम पीरियड इज अवेलेबल. तो करेक्ट आंसर इज ए. परपीचुअल बॉन्ड हैज नो फिक्स्ड मैच्योरिटी, इसकी कोई मैच्योरिटी है ही नहीं, इसीलिए तो परपीचुअल नाम है इसका. द टैक्सेबिलिटी रिस्क प्रीमियम compensates bond holder for which of the following. अगर आपको टैक्सेबिलिटी रिस्क प्रीमियम प्रोवाइड किया जाता है, तो कल को अगर इस बॉन्ड के ऊपर कोई अनफेवरेबल टैक्स का सिचुएशन आ जाती है, जैसे एट प्रेजेंट मान लो टैक्स नहीं लग रहा, कल को अगर टैक्स लग जाता है, तो आपको बोला हुआ पहले कि जो उसके ऊपर आपको प्रीमियम दे देंगे, फिर हम लोग को 8% की आपको 12% दे देंगे इंटरेस्ट रेट, है ना. तो वो क्या है उनको बेनिफिट, टैक्सेबिलिटी रिस्क प्रीमियम. तो वो किससे हमको बेनिफिट प्रोवाइड करता है, बॉन्ड के अनफेवरेबल टैक्स स्टेटस से. क्योंकि फेवरेबल टैक्स स्टेटस है अगर, तो उससे हमें प्रीमियम थोड़ी देगा कोई. अगर अनफेवरेबल होता है हमारे अकॉर्डिंगली, तो फिर कंपनी हमें जो है वो बदले में प्रीमियम देगी उस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए. अब म्यूनिसिपल बॉन्ड पेज इंटरेस्ट, दैट इज यूजुअली टैक्स फ्री, जनरली टैक्स फ्री होते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आपके. एग्जांपल्स ऑफ टैक्स फ्री बॉन्ड इज ICICI प्राइवेट बॉन्ड्स हैं, ये भी प्राइवेट बॉन्ड्स हैं, नहीं, बॉन्ड्स इशूड बाय रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, REC बोल देते हैं इनको, ये बॉन्ड्स आर जनरली टैक्स फ्री, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. Then allows investor to lock in a better rate of return for a longer period of time since these bonds are not likely to be called. लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टर को एक अच्छी रिटर्न देने वाले बॉन्ड्स को हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं, ये जो इसका आंसर है, दैट इज नॉट अ वेरी गुड आंसर. इसका आंसर, क्योंकि डीप डिस्काउंट बॉन्ड, इफ द आंसर देन जीरो कूपन बॉन्ड एंड डीप डिस्काउंट बॉन्ड इज वन एट द सेम, दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर, या फिर ये अगर डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, deep discount bonds are is a correct answer, but the D should be a different option. A और D जो है वो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि deep discount bond and zero coupon bond is the same answer, है ना. So with this we are ending this video. Hope you have completed your fixed income securities. This was the last video of this particular chapter. This chapter is having a weightage approximately 10 to 12 to 13 marks in your total exam. So must revise these 7 small videos before going to exam. If any query persists, then do contact me on through WhatsApp 7696645190. CA Abhishek S. Chauhan. Do subscribe the channel for further videos on different topics. Have a good day. Stay safe. Stay at your places.